40 kilometers from the vibrant Gurgaon lies Mewat, now Nuh in the state of Haryana. Historically significant for the valor of Mayo Muslims who fought against foreign conquerors and colonizers over the centuries. Today, the place is known for its high birth rate, severe anemia, and undernourishment among women and children. Women's health parameters have stubbornly remained poor in this region due to illiteracy, patriarchy, and religious orthodoxy. The women here literally pay with their blood. Health on Air explores these complexities through the eyes of local health workers, doctors, Maulvis, and other stakeholders fighting relentlessly to break Mewat free from the shackles of backwardness. At Mandikhera Civil Hospital, the gynecology department is a hive of activity. An average of 250 babies enter the world each month within these walls. Most births are routine affairs, with many mothers already experienced in delivering 3 to 7 children, some outside institutional care. On-duty medical staff reveal a common occurrence: delivering babies with alarmingly low hemoglobin levels in mothers. The result? Underweight infants who barely meet WHO's criteria. बच्चों का एवरेज वेट क्या होता है जब यहाँ पे डिलीवरीज होती हैं? मैम, एवरेज वेट में हमारा जो नीति आयोग का एक इंडिकेटर है, बर्थ ऑफ द चाइल्ड लेस देन 2500 ग्राम, अप टू 2500 ग्राम से तो WHO मतलब नीति आयोग भी ओके विद इट। जो लेस देन 25% है वो डाटा हम इम्प्रूव कर रहे हैं। Why do women suffer so much from anemia? Because of the children are more and education level is little on the lower side for the women. हमने एक प्लान बनाया है कि आशा वर्कर will not go to any house and just give the head count. हर पर घर पे जाके 2 मिनट का टाइम लगाएगी, so that एक बॉन्डिंग बन जाती है बेनिफिशियरी की और हमारे हेल्थ वर्कर की। मैम, जो खून की कमी होती है, एक तो वो प्रेगनेंसी के बारे में अपने बारे में बताते नहीं है, हमें तब पता लगता। बहुत सी लेडीज तो ऐसी हैं कि उसे 8 या 9 महीना लगता है। 3 विजिट होती है लेडीज़ की, अगर वो टाइम से करवा ले और गोली खा ले जो आंगनवाड़ी में मिलती हैं, हम देते हैं, जो आशा वर्कर देती है, एनएम देती हैं, तो उनसे खून की कमी नहीं आएगी। वो अपने स्वास्थ्य के बारे में बस यही कह देती है कि ये दवाई अच्छी नहीं लग रही। वो ना भी लेती है, ले जाती है, लेकिन वो लेती नहीं है घर पर जाने के बाद में। We next move to Nagina PHC. Unani, a system of medicine under Ayush, is a popular choice for women here. Women frequently present with pelvic inflammatory disorder, often a consequence of unprotected sex and early sexual activity. बच्चों के बीच फैमिली प्लानिंग नहीं करते हैं लोग ज़्यादातर, सही से खाना पीना लेडीज़ को मिलता नहीं है। वो खाने पीने पर खुद भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। कमज़ोरी इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा है, उसकी वजह से फिर उनको लिकोरिया भी हो जाता है, सफ़ेद पान की दिक्कत हो जाती है। The biggest challenge that ASHA workers face in the line of their work is the lethal grip of patriarchy on the lives of women of Mewat. वो ज़्यादा करना अपने हस्बैंड या वैसे मतलब फैमिली के ऊपर डिपेंड होती है। जहाँ उसके वो बड़े बूढ़े कह देते हैं वो वहाँ पे जाती है। टीके की इजाज़त भी वो वहीं से ही लेती है। और बच्चों को टीकाकरण के बारे में बहुत दिक्कत आती है। किस तरह की? वो ऐसे आती है कि बहुत से तो जैसे बच्चों को पेंटा लगता है ना, तो वो जो जांग वाला टीका होता है वो 5 बीमारी को मारता है, तो उससे बच्चे को बुखार तो चढ़ता ही चढ़ता है। उसकी वजह से गांव की लेडीज़ मना कर देती हैं, कहती है कि अब लड़ रहा है इसका, या फिर पूछूंगी घर पे काम कौन करेगा, इसे बुखार चढ़ गया तो। The biggest challenge we encounter in Mewat is that women here are unwilling to come forward and share their experience. As for men, either they are dismissive of these problems, and when they do have something to say, their opinion about women's health is usually ill-informed and counterproductive. मेवात की एक सबसे बड़ी दिक्कत जो रही है वो ये है कि औरतों को एनीमिया का बहुत दिक्कत होता है। ये इनकी अपनी बदअक्ली का कसूर है, ना ये टाइम पर नींद लेती हैं, ना टाइम पे इनको खाना मिलता है। तो खाना क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या या इनकी अपनी बेवकूफ़ी है, बेल में है, इनके अंदर कोई शिक्षित तो यहाँ नहीं। शिक्षा की क्यों कमी है औरतों में? शिक्षा की यूँ कमी है कि इस पे पहले इनके माँ बाप होने, मैं भी किसी का माँ बाप हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया।
डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों के बीच में स्पेसिंग नहीं है। ये भी बात आपकी सही है, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। ये सारी कमजोरी की वजह से होता है। जब औरत और मियाँ बीवी दोनों कमज़ोर होते हैं तो जो है बच्चा जल्दी आएगा। तो गैपिंग करने के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं मॉडर्न साइंस में। सब कुछ है जी, बात तो यूँ है ना कि इनमें अपनी अकल से तो काम करते नहीं हैं। Religious leader tactfully skirt the issue of frequent pregnancies, making women anemic by invoking the tenets of Islam. देखिए ऐसा है, हम तो लोगों को ये समझाते हैं, देखिए ये सुन्नत भी है, जब तक बच्चा दूध पी रहा है माँ का, दूसरा बच्चे क्या इज्तनाब हो, एहतियात हो, तो बच्चे का खुराक दूध पीना जो है बच्चे का हक है, और माँ का दूध ही सबसे पौष्टिक चीज़ है। और बच्चे की दूध पीने की मुद्दत रखी है इस्लाम ने 2 साल, इसलिए इस दरमियान तो एहतियात बरतनी चाहिए, गैप देना चाहिए। जो उस बच्चे का हक है, जो बच्चा पहला हो चुका, वो दूसरे बच्चे से पहले इसका हक है जो आ चुका। Locals here have always been wary of immunization and institutional deliveries in government hospitals. क्या सोचते, डर क्या है उनको टीकाकरण से? ये तो उनका मन की बात है, कभी तो कुछ बहाना लगा देते, कभी तो कहते हैं बच्चा बंद करवा देगा, कभी कहते हैं इसमें कुछ मिलावट आ रही है, कभी ये कहते हैं कि हम टीका लगवावे नहीं, हमारा ससुर मना करता है, ससुर कहता है हमारा बेटा मना करता है, बस ये प्रॉब्लम है। This lack of trust impacts women's health the most as private players use exploitative tactics. मेवात में अगर देखा जाए कितनी औरतें हॉस्पिटल में जाके कराती हैं। मैम होते तो हैं हॉस्पिटल में ही, पर वो प्राइवेट में होते हैं। एक दाई है गांव की यहीं से, तो वो प्राइवेट में ले जाती है उनको, हमसे पहले ही कच्चे दर्दों में ही ले जाती है उनको पता लगता है ना इसको मतलब पूरे लग गए हैं, मतलब डिलीवरी होने वाली, तो पहले चक्कर काटने लगती है उनके पास, वो तो प्राइवेट में ले जाती है उनको। प्राइवेट डॉक्टर पैसा देता है उनके लिए, कमीशन कहते हैं हमारे यहाँ। सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने में क्या दिक्कत है? पता नहीं मैम, वो पहले ही ले जाती है उनको, बहका देख रेख नहीं करते, बहका देते हैं। हाँ, बहका देते हैं, हाँ, डरा देते हैं। हाँ। Public funded health programs for women and children have experienced a setback due to recent disturbing events in the region. मेवात में कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स थे, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जो विच आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल, तो उसके कारण इम्यूनाइजेशन थोड़ी डिप हुई थी, थोड़ी नहीं काफ़ी डिप हुई थी। तो उसको कवर करने के लिए हमने अपने स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक किए थे। मौलवी से, मौलाना से हम ऐलान भी करवा रहे हैं मस्जिदों में, जुम्मे की नमाज में ये अनाउंसमेंट ज़रूर हो जाए अबाउट वैक्सीनेशन, क्योंकि जुम्मे की नमाज में मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, मैक्सिमम लोग आते हैं, और हम अपनी भाषा में नहीं करते, हम उनके मौलवी या मौलाना से ही ये अनाउंसमेंट करवाते हैं। अगर हम कमज़ोर हैं, तंदुरुस्त नहीं हैं, तो हम इबादत भी नहीं कर सकते, हम सही ज़माने में नमाज भी नहीं पढ़ सकते। और ये जो स्कीमें हैं, पल्स पोलियो अभियान का हो या टीकाकरण का हो, मिशन इंद्रधनुष का हो, ये सब चीज़ें हमारी सेहत के लिए हैं, और इसमें कोई किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं होता। New Mewat in Haryana was declared as the most backward district of India by Niti Aayog a few years back. The district continues to perform dismally on several health parameters, but there are a few bright spots. The relentless efforts of ASHA workers in NU is bringing more and more women into the PHCs for their pre-delivery checkups. Institutional deliveries have gone up, which has brought down maternal mortality rate to a great extent. Yet a lot needs to be done for the women of Mewat who are trapped in a vicious cycle of endless pregnancies, anemia and malnourishment. This is Somi Das with Akshay Razdan for Health on Air.